Hi students, hope you have understood how to determine the frequency, wave number. Okay, so we have done two numericals related to that, and in the today's lecture we are going to discuss the next part of the topic. Okay, so up to till date what we have discussed? We have discussed regarding the electromagnetic radiation, electromagnetic wave theory. So electromagnetic wave theory. Okay. There are certain drawbacks, there are certain limitations of electromagnetic wave theory. The limitations are, what are those? Electromagnetic wave theory explain the phenomenon like interference and diffraction. Okay, about the light, about the radiation. Okay, but electromagnetic theory failed to explain. Electromagnetic theory failed to explain two of the phenomena. One is black body radiation. Black body radiations. And another one is photoelectric. Photoelectric effect. So these two phenomena are not explained by using electromagnetic wave theory. Okay, and to explain these phenomena, okay, we have to go for another theory, which is called as Planck's constant theory. So quantum theory is capable to explain these phenomena very successfully. Okay, so before going for Planck's quantum theory, we will go just what is these phenomena are. What is black body radiations and what is photoelectric effect. So what is black body radiations or what is black body? Okay, so what is black body? A perfect body. A perfect body. Anything, body means anything. Okay, a perfect body which is capable to absorb or emit all type of radiation, all type of radiations is called black body. Is called black body, and radiations are called black body radiations. So what is black body? A perfect body. Okay. So what we are saying? We are seeing the electromagnetic waves. Okay. And in that electromagnetic waves, we are saying that there are different kinds of radiations. That is cosmic rays, gamma rays, X-rays, UV rays, invisible rays, then microwaves, radio waves, infrared. All these type of radiations combined called as electromagnetic waves or electromagnetic radiation. And if a body is capable to absorb all the kind of electromagnetic radiations, absorb or emit all kind of radiation, then that body is called as a black body. That is called as a black body. Okay. And the radiations, okay, the radiations which are absorbed by or which are emitted by this type of body is called as a black body radiation. So for example, consider a sphere, and the sphere has a small pinhole, and from this pinhole we are
going to incident a radiation. Okay, a radiation. So what happened? This radiation will come here, okay, strike with the surface, and then it bounce, but he does not bounce back. This ray is not going to going back outside this sphere. This goes in another direction like this. The ray will move like this, and the total energy or whatever the total part of this radiation get absorbed by that surface, the spherical surface. Okay, तो देखो क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात कर रही है, चल रही है। तो ब्लैक बॉडी किसको बोलने का, कोई भी एक ऐसा बॉडी के जो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पूरा स्पेक्ट्रम को एब्सॉर्ब कर सकता है, अपने अंदर ले सकता है। ओके, उसमें जितनी भी सारी एनर्जी हो, जितनी भी सारी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी, जो भी कुछ वेव्स आएंगे, वो सभी वेव्स को अपने अंदर समा सकता है, एब्सॉर्ब कर सकता है। इसको क्या बोलोगे आप, ब्लैक बॉडी बोलोगे। या फिर एक ऐसा बॉडी, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो ये सभी के सभी पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को इमिट कर सकते हैं, मतलब वो सोर्स करके एक्ट हो सकता है, वो कॉस्मिक रे का सोर्स बन सकता है, वो गामा रे बन सकता है, सोर्स बन सकता है, वो एक्स-रे का सोर्स बन सकता है। ओके, पूरा जो स्पेक्ट्रम है उसको क्या कर सकता है, इमिट कर सकता है, मतलब वो उस तरह के रेडिएशन दे सकता है, या फिर उस तरह के रेडिएशन को अपने पास ले सकता है। ऐसी बॉडी को हम क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉडी। और इससे जो निकलने वाली रेडिएशन है, इसको क्या बोलोगे आप, ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलोगे। अभी ये समझने के लिए हमने क्या किया है, हमने एक स्फेरिकल मेटल्स का एक स्फीयर लिया है, ठीक है ना। अभी स्फीयर को एक छोटा सा होल बना दिया है, और इस होल से हम क्या कर रहे हैं, एक रेडिएशन पास कर रहे हैं, ठीक है। अभी जब भी ये मेटल सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेगा, जब भी रेडिएशन, ये रे आगे इधर स्ट्राइक करेगा, अंदर का जो पार्ट है ऐसा कर्व है, ठीक है ना, ये ऐसा है, ये कर्व है। तो कर्व के ऊपर आने के बाद डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इसको इधर स्ट्राइक करने के बाद इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होने वाली है। तो डायरेक्शन चेंज होकर किधर जाएगा, ये इस तरफ जाके परत वापस उसी स्फीयर के सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेगा, इधर से इधर आएगा, इधर भी स्ट्राइक करेगा, इधर भी स्ट्राइक करेगा, इधर भी स्ट्राइक करेगा, इधर भी स्ट्राइक। तो ये ऐसे होते होते इसके अंदर ही नहीं, वो जो रे हमने पास किया है वो रे क्या करेगा, इसके अंदर ही रहेगा, और पूरी की पूरी एनर्जी के पार्ट में फर्स्ट थोड़ा एब्सॉर्ब कर दी जाएगी, सेकंड स्ट्राइक में थोड़ा, थर्ड स्ट्राइक में, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे थोड़ी एनर्जी उसकी क्या की जाएगी, इस रेडिएशन की एनर्जी वो बॉडी जो है, वो जो स्फीयर, मेटल स्फीयर है, वो क्या करेगा, अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेगा, अपने अंदर लेगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो गया, ये जो स्फीयर है ये क्या कर रहा है, अभी ब्लैक बॉडी करके एक्ट हो रहा है, ब्लैक बॉडी करके एक्ट हो रहा है। लेकिन अगर आप इमेजिनेशन के लिए कर सकते हो तो ये ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ऐसे कोई ब्लैक बॉडी है क्या, तो एक्चुअल में ऐसा ब्लैक बॉडी जो सभी के सभी रेडिएशन एब्सॉर्ब कर सके, ओके, ऐसी कोई बॉडी सब पूरा स्पेक्ट्रम एब्सॉर्ब करने वाली बॉडी बनाना डिफिकल्ट है। लेकिन एक स्फीयर, एक कोई भी रेडिएशन, कोई भी फ्रीक्वेंसी का वेव अगर आप पास करते हो, एक रेडिएशन दे देते हो, तो उसको क्या कर सकता है, पूरा का पूरा एब्सॉर्ब कर सकता है। और ऐसी बॉडी को, एक परफेक्ट बॉडी जो पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम या फिर पूरा का पूरा रेडिएशन एब्सॉर्ब कर सके, ओके, या फिर पूरा का पूरा एक स्पेक्ट्रम दे सके, उसको क्या बोलेंगे आप, ब्लैक बॉडी बोलोगे, ब्लैक बॉडी बोलोगे। और इससे निकलने वाले रेडिएशन को ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलोगे। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इसका जो सरफेस है वो कर्व सरफेस है। तो अभी आप बॉल क्या करते हो, आप वॉल के ऊपर, बॉल अगर आप क्रिकेट बॉल जो होता है, टेनिस बॉल जो होता है, तो वॉल के ऊपर हम डालते हैं तो वापस चला आता है आपके पास, बराबर है, वापस चला आता है। क्यों, क्योंकि उधर प्लेन सरफेस है, उधर सरफेस कैसा है, प्लेन सरफेस। तो इधर आएगा, वो स्ट्राइक करेगा, जिस एनर्जी से आया है उस एनर्जी से वो वापस चला जाएगा। लेकिन आप जिस एनर्जी से आपने फेंका है
उस एनर्जी से उतने ही स्पीड से वो नहीं आता है, थोड़ा सा स्लो आएगा। जितने स्पीड से आपने दिया है उसको, उससे थोड़ा उसका स्पीड क्या होगा, कम रहेगा, क्योंकि कुछ एनर्जी आपका वॉल के ऊपर जाने के बाद एब्सॉर्ब होगी, वॉल से नीचे वापस आते हुए कुछ एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, एब्सॉर्ब की जाएगी। लेकिन अगर हमने कर्व सरफेस के ऊपर कभी बॉल फेंका तो क्या हो जाएगा, वो अपनी तरफ नहीं आएगा, ठीक है, अपनी तरफ नहीं आएगा, तो वो किधर जाएगा, उसका डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगा, उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वही हम बॉल का जो फिनोमेनन है वही इधर अप्लाई कर रहे हैं। अगर कोई कर्व सरफेस है उसके ऊपर हमने डाल दिया तो वो बॉल किधर तो दूसरी जगह पे जाएगा, ऐसे ही रेडिएशन इधर स्ट्राइक होकर वापस नहीं चला जाएगा, तो ये कर्व सरफेस की वजह से इधर उधर अंदर ही, वो स्फीयर के अंदर ही घूमता रहेगा और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसकी एनर्जी जो है पूरी की पूरी एनर्जी एब्सॉर्ब की जाएगी और ये खत्म हो जाएगा, उसका जो बाउंसिंग है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम ब्लैक बॉडी, या फिर इस कंसेप्ट को हम बोलेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, ठीक है। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, हम नेक्स्ट को चलते हैं। ये जितना डेफिनेशन याद रखेंगे उसका, ब्लैक बॉडी रेडिएशन बाकी की चीजें एक्सप्लेनेशन वगैरह जो है वो पूछा नहीं जाता है, तो डेफिनेशन याद रखो। नेक्स्ट करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या आता है इसके अंदर देखेंगे। देखो डेफिनेशन जो है पूरी सिंपल डेफिनेशन है। व्हेन रेडिएशन ऑफ अ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, व्हेन रेडिएशन of certain minimum frequency, strike on the metal surface, the electrons are ejected from a metal surface, the ejected electron is called photo electron, and the phenomenon is called photoelectric effect. So what is this photoelectric effect? Photoelectric effect, what it is? When a radiation of certain minimum frequency strike on the metal surface, the electrons are ejected from the metal surface. Okay, the ejected electrons are called as photoelectron, and this process is called as, this phenomenon is called as photoelectric effect. Photoelectric effect. तो सिंपल सी चीज है, देखो अभी एक वॉल है, एक वॉल, तो वॉल जनरली किससे बनती है, तो ब्रिक्स से बनती है, बराबर। तो अगर मुझे उस सरफेस ब्रिक्स के ऊपर या फिर वॉल के ऊपर जो प्लास्टर हम करते हैं, ये जो प्लास्टर बनाया जाता है, प्लास्टर ये जो चीज है, ठीक है ना। अब ये प्लास्टर को मुझे अगर निकालना है, समझो कि मुझे एक शॉट में मुझे एक हैमर लेके मैं इसको ऐसा जोर से इसके ऊपर ये करूंगा, स्ट्राइक करूंगा या फिर जोर से मारूंगा, तो मुझे क्या करना, मारने के बाद इससे प्लास्टर मुझे निकलना चाहिए, इतने जोर से मुझे
ठीक है। तो कितनी ताकत लगानी पड़ेगी? ये जो प्लास्टर जो जिस फोर्स से एक दूसरे के साथ ये पूरे पार्टिकल के सीमेंट रहेगा या फिर उसमें सैंड रहेगी कि ये पूरा पार्टिकल जिस फोर्स से एक दूसरे को कनेक्टेड है, बाउंडेड है, उससे ज्यादा अगर मैं फोर्स अगर लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लास्टर ब्रेक होने वाला है। ओके, प्लास्टर क्या होने वाला है? ब्रेक होने वाला है। या फिर ये सरफेस मुझे तोड़ना है तो कितना मुझे फोर्स देना पड़ेगा, कितने जोर से मारना पड़ेगा? तो इसमें जो पार्टिकल है इस ब्लैकबोर्ड के सरफेस के उनके अंदर जितना फोर्स है कि उससे मैं ज्यादा या फिर उसके इक्वल एनर्जी अगर मैं देता हूं स्ट्राइकर मेरे स्ट्राइक में, ओके, तो क्या हो जाएगा कि इधर से वो सरफेस ब्रेक होने वाला है। ओके, एक छोटा सा टुकड़ा निकल जाए, ठीक है ना। वैसे हम कर रहे हैं वही चीज, सेम चीज अप्लाई कर रहे हैं। तो जब भी आप एक मेटल सरफेस लेते हो, समझो कि एक मेटल सरफेस है, और उस मेटल सरफेस, अभी मेटल सरफेस में क्या होता है? मेटल बोले तो हम क्या बोलते हैं कि मेटल का मतलब क्या है? उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और मेटल के आयंस होते हैं, बराबर ना? मेटल के आयंस होते हैं, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो मेटल, जब भी मेटल सरफेस बोल रहे हो तो उस सरफेस के ऊपर भी कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा देखा गया है कि अगर आप कोई रेडिएशंस मेटल सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करते हो, ओके, तो क्या निकलता है? उधर से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, उधर से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो ये क्या है आपका? ये इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन। और ये क्या है आपका? ये इलेक्ट्रॉन है या फिर इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं इसको, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। अभी ये रेडिएशन जो है वो सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी की चाहिए, सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी की चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन, उधर जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटल आयन के साथ बाउंडेड है, जितनी बाउंडिंग में उसकी एनर्जी है कि जितनी स्ट्रांगली वो बाइंड है, उतनी एनर्जी जब तक इस रेडिएशन में नहीं मिलेगी, कि उतना फोर्स जब तक इस रेडिएशन में नहीं रहेगा तब तक ये इलेक्ट्रॉन बाहर गया है। Okay, up to that time this electron is not going to eject. Okay, so what we are saying, certain minimum frequency, and that minimum frequency is called as a V0, या फिर nu zero. This is called as a nu zero. And what is this nu zero is? This nu zero is called as, so what we can say that the minimum frequency, required to eject an electron from metal surface, is called threshold frequency, nu zero. So certain minimum frequency, the minimum frequency is required to eject an electron from a metal surface. Okay, that is called as what? Threshold frequency. If this radiation has that, okay, that frequency, then only this electron going to be ejected out. This electron is going to be out from this surface. Otherwise, this electron is not going to come out. Okay, that remains as it is, and only this radiation strikes, gives some energy to surface, and goes out and goes away. Okay, or reflected from the surface. Okay, so what must be required? Okay, what is must? The first one, the radiation or the incident radiation require
equal to or greater than mu 0. So this incident radiation, okay, must have a frequency equal to what? Equal to threshold frequency or greater than threshold frequency. If it is greater than, it is okay. If it is greater than, then it is okay. Now, if it is greater than the threshold frequency, the velocity, what it is? The velocity, or what we can say that kinetic energy of ejected electron depends upon what? Depends upon frequency of radiation. The velocity or kinetic energy of ejected electron depends upon the frequency of radiation. And the third one radiation, how many electrons are going to come out? Okay. By striking one radiation, how many electrons are going to come out? That depends upon that. What it is depends upon the number of electrons ejected depends upon the intensity of radiation. So the number of electrons ejected out, okay, it does not depend upon the frequency of radiation. It depends upon the intensity of radiation. How much intense that radiation is, depending upon that the number of electrons, how many electrons are ejected out is depend. किसके ऊपर डिपेंड है ये? इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड है. इंटेंसिटी बताएगी आपको कि कितने इलेक्ट्रॉन बाहर आने वाले हैं. वही फ्रीक्वेंसी आपको क्या बताएगी? वेलोसिटी बताएगी. इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन कितने स्पीड से बाहर आने वाला है. ओके, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन कितने स्पीड से बाहर आने वाला है, या फिर उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, वो कौन बता रहा है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन बता रहा है. और इंसिडेंस रेडिएशन में क्या होना चाहिए? इंसिडेंस रेडिएशन में मिनिमम उतनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जो इक्वल टू है या फिर ग्रेटर देन है इससे आपके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से. तभी अभी ये तीन अगर होता है, ओके, ये तीन पॉइंट के बाद ही आपको क्या मिलेगा? ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व करने को मिलेगा. ठीक है, अभी समझो कि ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से इक्वल टू या ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन ने स्ट्राइक कर लिया. तो ये जो इफेक्ट है इसको बाद में आइंस्टाइन ने स्टडी किया है और आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दे दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए. और उसमें वो क्या बता रहे थे? देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन is equal to absorbed energy minus threshold energy. Okay, so we know that equation for kinetic energy, that is half mv square. Equation है kinetic energy का, ठीक है? This is equal to h nu absorbed energy minus threshold energy h nu 0. Okay, h nu is 0. Now we know that equation for nu is equal to c upon lambda. So we can put in the equation. Okay, put the value of nu as a c upon lambda. What we can write?
upon lambda minus 1 upon lambda c. So you can use a frequency, otherwise you can use the wavelength of the radiation to determine the kinetic energy of an electron, or you can determine the velocity, okay, by what transferring this m, okay, to the right hand side. So this is the equation to determine the kinetic energy of an ejected electron. So this is regarding the photoelectric effect. The remaining remaining part we will discuss in the next lecture. Before closing, where in this equation H, what is H, sir? This is mu, you know that frequency. This is velocity. This is mass. Now what is this H? H is called as a Planck's constant. Planck's constant. Okay, and that we are going to study its quantum theory. इसके quantum theory में हम इसकी बात करेंगे, ठीक है? तो ये है आपके आज के लेक्चर के 2 पॉइंट्स, एक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन और दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो याद रखो कि एक रेडिएशन कोई भी मेटल सरफेस के ऊपर अगर स्ट्राइक करता है तो उधर से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। बस क्या चाहिए आपको, तो उस रेडिएशन में एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, या फिर उतनी एनर्जी चाहिए जितनी एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन उस सरफेस के साथ बाउंडेड है। उतनी एनर्जी अगर प्रोवाइड करते हो तो वो क्या हो जाएगा, उधर से बाहर निकल जाएगा। यही कंसेप्ट के ऊपर हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है? थैंक यू।